हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 37 की, जो कि 4 अक्टूबर के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं वर्कशीट में मोशन के बारे में और इसमें पढ़ना है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के, तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन वाज says about the relationship between velocity and time, that is v is equal to u plus at. Second says or relate about time and position of the मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्स बच्चों। और थर्ड रिलेशन बताती है वेलोसिटी एंड पोजीशन का, 2a_s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। And these 3 equations can be used to solve the problems related to velocity, time, distance and acceleration. And in this equation, particular terms such as u, v, a, s, t denotes the following which was given here, such as s is equal to distance covered, t is equal to time taken. So first of all, we try to derive equation first of motion or velocity and time relationship by the graphical method. So we have to follow some specific things or rules just we have given there in the worksheet. चलिए देख लेते हैं इन्हें। फर्स्ट वन इसकी, द ऑब्जर्व ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर u is not equal to 0. From this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A and then it increases to v at point B in a time t. The velocity changes at a uniform rate a. So here the velocity changes at a uniform rate a. Then in point T we can draw a perpendicular line BC and BE, that is BC and BE from point B on the x-axis time and y-axis velocity respectively. ठीक है बच्चों। Then draw AD to parallel to OC, AD parallel to OC, sum out this. Then here we can say initial velocity is equal to OA. OA was initial velocity. Final velocity BC, it was above. Final velocity was BC and the time interval is OC बच्चों। ठीक है, तो now change in velocity BD is equal to final velocity BC minus initial velocity, and when we solve this we get our first equation, BD is equal to V minus U. Then as we know, acceleration is equal to change in velocity upon time taken. It was shown by BD upon AD. Then if we replace AD is equal to OC is equal to T, then we get our second equation, and combining two we get V is equal to U plus AT बच्चों। Similarly we can derive the second equation of motion. तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें है velocity time graph of a uniformly accelerating object where u is not equal to 0. From this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A and then increases to v at point B in a time t. The velocity changes at a uniform rate. Here the velocity changes as a uniform rate बच्चों, यहाँ पे भी। फिर है draw a perpendicular line BC from point B on x-axis. BC लाइन आपको ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के बच्चे। फिर उसके बाद थर्ड, वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन OABC, यानी OABC ये वाला पहला, ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस करके आपको मिलेगा, नीचे यही दिया है, दस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी नीचे का रेक्टेंगल और ऊपर का ट्राइंगल। जब इसे भी हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जब कंबाइन करेंगे हमें मिलेगा बच्चों S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अल्टीमेटली हमें पहली और दूसरी इक्वेशन के साथ ये मिल जाएगा। पहली इक्वेशन ये है यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो आ गई आपकी वर्कशीट। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें 3 इक्वेशन ये लिखनी है बच्चों।
ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए जरा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज वी यू ए एंड एस स्टैंड फॉर इन इक्वेशन ऑफ मोशन। वी ओ ए और एस इन सब की चीज़ों के बारे में बताना। तो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आंसर 2S में से देख करके आप लिख सकते हैं बच्चों। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन मोशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन का, ये आंसर 3 है आपका। पहले 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, पहले 2 पॉइंट आपको समझने के लिए खाली, ठीक है बच्चों, कि ये कंडीशन होनी चाहिए यूनिफॉर्मली, जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए, u इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ये सब चीज़ें हैं। नीचे की जो चीज़ें हैं यानी कि 4th पॉइंट से जो शुरुआत हो रही है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको बतानी पड़ेंगी डेरिवेशन में, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तभी आप दिखा पाएंगे। तो ये यहाँ से लिख करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्मली, ए कार एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाई द कार इन दिस टाइम। तो यहाँ पे इक्वेशन लगेगी ये वाली। तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, 5 × 5 प्लस 1/2 इंटू 5 × 5 और 1, तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 37.5 के अराउंड मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।